आफ्टरनून है। आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हालचाल? बढ़िया। ओके। आई थिंक लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जेई खत्म किया था। तो आई थिंक आज करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं रही है, तो इसकी बारिश कर देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ओके। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर बोर्ड आइडियाज। सो सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? When charge flows from one point to another, maybe along a conductor or something, then electric current is said to flow. So the rate of flow of charge, you can call it the rate of flow of electric charge through a conductor or anything like that is called electric current. The famous equation is I is equal to Q by T. एंड उसके बाद अगर चीजों को इस तरह देखा जाए कि सपोज डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी, देन यू हैव अनदर इक्वेशन. इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज passes in time delta t, we are trying to find out the average value of current. Then एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हमको इंस्टेंटेनियस मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे. एवरेज इलेक्ट्रिक करंट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, I get the instantaneous value of current, which is of course instantaneous current. I is limit delta t tending to 0, delta q by delta t, which of course becomes I is equal to dq by dt. So this equation tells you कि अगर आपको चार्ज दिया हो and you wish to find current, then differentiate charge with respect to time and you shall get current. अच्छा, on the flip side, अगर आपको करंट दिया हो और चार्ज फाइंड करना हो, तो भी ये इक्वेशन वर्कआउट होगा. डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, एंड टोटल चार्ज क्यू, विच इज इंटीग्रल डी क्यू ऑफ कोर्स, इज इंटीग्रल आई डी टी. आज एक आध सम इस चीज पे बेस करेंगे हम, क्योंकि ऐसा कुछ हमने बोर्ड में तो नहीं देखा, तो इसमें देखने का आइडिया आएगा. अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड और बेटर नोन एज एम्पियर. ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज रफली डिफाइंड एज 1 कूलम पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. बट ये बहुत बड़ा यूनिट है, जैसे 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं. 1 मिली एम्पियर विच इज 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर which is 10⁻⁶ ampere. Is this absolutely agreeable? No problems? Yes, sir. Okay. I'm going to take this off now. And the moment I take this off, I'll also try to find a different equation for current also, which I already did in the board. So it's just a sort of deja vu. पर उसको काफ़ी टाइम पहले देखा होगा, तो शायद आपको आइडिया नहीं रहा होगा कि ये इक्वेशन भी ऐसा कुछ था. I am talking about an electron in an atom which is moving around a proton या moving around the nucleus. So अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो कितना करंट कंस्टिट्यूट करता होगा? That is the prime question. So I'll put this down in a note actually. Note, if an electron revolves around a nucleus, then the electric current constituted, that's the question, कितना करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है. तो I will use I is equal to Q by T, and with Q I'm going to use Q is equal to NE, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होने से N will be equal to 1.
So I get I is equal to E by T. This is one equation. Also, I hope you remember 1 by time period is frequency nu. So you have another equation which is I is equal to E nu. And if you wish to have an equation which considers the radius of the electron's orbit or the speed at which it revolves, then I can find that also. We know distance is speed into time. अच्छा, ये कंसिडर करें कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, यहां से शुरू किया, टक 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 घूम के यहां पे आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? इजंट इट इक्वल टू सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर, स्पीड इज v, टाइम इज t. तो यहां से मुझे t का इक्वेशन मिलता है, t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई v. आई थिंक आई विल पुट 3 in 1, and as a result I get one more wonderful equation. I is equal to E over 2 pi r by v, and v को यहां से ऊपर ले जाऊं तो I get I is EV by 2 pi r. So these three equations, first of all I is E by t, secondly I is E nu, and thirdly I is EV by 2 pi r, will be used in many more such things, but you need to know these prime equations. I am taking this off now, and we'll go on to what is called current density. Okay, can I take this off? Yes. And remember always, you know, we are going to be primarily talking about current flow in conductors through wires. तो suppose एक जाड़ा वायर कनेक्ट किया है, उसके साथ एक पतला वायर कनेक्ट किया है, तो याद रखिएगा जितना करंट वो पतले वायर में फ्लो हो रहा है ना, वो सारा का सारा उतना ही करंट जाड़े वायर में फ्लो होगा. ऐसा नहीं होगा कि यू नो, ये सपोज दिस इज द टाइप ऑफ अ वायर, ये पतला वायर है और ये जाड़ा वायर है, और इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो यहां पे 2 एम्पियर होगा तो यहां आके वो 4 नहीं हो जाएगा, बिकॉज चार्ज कैन नॉट मल्टीप्लाई, चार्ज कैन नॉट गिव राइज टू मोर चार्ज, चार्ज रिमेन्स द सेम. दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो इधर से इधर जा रहा हो या इधर से इधर आ रहा हो, द अमाउंट ऑफ करंट विल रिमेन सेम. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज will be obeyed. Charge does not accumulate at any point in the conductor. It does not get destroyed at any point in the conductor. तो जितना चार्ज आ रहा है पर सेकंड, उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा पर सेकंड. ऑलराइट, रिमेंबर दैट. ओके, दिस इज द फर्स्ट आइडिया. सेकंड, अब करंट डेंसिटी की बात करें. करंट के डेफिनेशन में हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर को नहीं लिया था. So this is the cross sectional area of the conductor, cross section of the conductor, and let us say this is current and this much is area A. So what is going to be current density? In a very simple form, I define current density as the amount of current, electric current, flowing perpendicularly per unit cross sectional area upon the cross sectional area perpendicular to the flow of current. Many people tend to ask me, sir, cross sectional area ही ठीक था, ये perpendicular to the flow of current लेने का क्या फंडा? Now if you look at this, this is the most simplest idea. करंट ऐसा आ रहा है और ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है, तो डोंट यू सी दिस क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना? सो इतना एरिया ए है, तो इस सिचुएशन में वी कैन सिंपली से जे इज आई बाय ए. वेरी सिंपल. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट आई इज जा. Ladies and gentlemen, this is the simplest of current density equations. The idea is a little, grown though. That suppose तुम्हारा cross section ऐसा ना होकर कुछ ऐसा हो जाता है. Suppose you are talking like this. ये आपका cross section है. This is the direction of current flow. Then इसका जो area vector होगा ना, वो ऐसा होगा. Let us say a little pronounced. And as a result,
लेट अस से मेकिंग एन एंगल थीटा हियर। तो इस डायरेक्शन में अब आपको यहां पे दिख रहा है इसका एरिया वेक्टर कैसा था, इसी तरह था, यू नो ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, तो आई और ए दोनों सेम दिशा में थे, पर यहां पे इस दिशा में कौन सा कंपोनेंट होगा करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का? डू यू एग्री दिस विल बी ए cos थीटा? सो हियर द इक्वेशन विल चेंज, दिस बिकम्स j is I by a cos theta or I is j a cos theta. And I think you also know that current density is a vector, area is also a vector. This is the dot product of two vectors. Yeah, it's a dot product of two vectors, and as a result what do you get now? So I is j bar dot a bar. So j bar और a bar का dot product है j a cos theta, but most important is this angle theta. This angle theta is the angle between the area vector and the direction of flow of current. Please remember this very well. कभी कभी सम आ जाता है, पब्लिक थीटा को लेके परेशान हो जाती है. थीटा is the angle between area vector and direction of flow of electric current. Okay, so these are the equations for current density, and as I said current density is a vector जिसका SI unit is ampere per meter square. Is this absolutely agreeable, people? No problem so far? Okay, can I take this off and move on ahead? Okay, I am looking at a couple of sums right now, and the moment I get through the cleaning of the board, I am going to put those sums on the deck. So I would have loved to tell you कौन से sums लिख रहा हूँ, but रुक जाओ एक second, it'll just take me a second, maybe a couple of seconds. Okay, I am looking at number, what is a number? I am looking at round 1 ka number 1, then I am looking at round 1 ka number 5. Okay, round 1 ka number 1. Okay, what does it say? It says the current flowing through a wire depends on time as I is equal to 3t square plus 2t plus 5. Okay, and we need to find the charge flowing through the cross section of the wire from t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. I think this is as good as it gets. We know, the most prolific expression for current was I is equal to dq by dt, and as a result I get dq is equal to I dt, and if I integrate both of them I'm going to find total charge. So charge q, which is integral dq, is integral I dt. तो ये जो करंट है इसको मैं यहाँ लगाऊंगा एंड लिमिट्स भी सेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt, एंड कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर 2 सेकेंड तक. ओके, मैं बंटवारा कर देता हूं, 3 को बाहर निकाल लेता हूं, एंड आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल. आर यू है भाई? आर यू? मैं लिमिट साइन में लगा दूंगा जब मैं पुट करने वाला हूँ भाई. इंटीग्रल टी स्क्वायर, इजंट इट टी क्यूब बाई 3? ऑलराइट. इंटीग्रल टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, बट ऑफ कोर्स प्लस 5 इंटीग्रल डी टी एस टी, एंड आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर आई पुट द लिमिट्स. भाई पहले 3 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, सो दिस इज टी क्यूब 0 से लेकर 2 तक प्लस टी स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक प्लस 5t 0 से 2, एंड लेट्स पुट इट 2 का क्यूब, पहले t की जगह 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस अब 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5, पहले 2 माइनस 0. भाई 2 का क्यूब इज हाउ मच? 8, माइनस 0 इज गॉन.
2 का square is how much? 4. And 2 minus 0 is 2. 5 2s are is 10. 10 plus 12. I think the answer should be 22 coulomb. Can someone check it? Agreeable? Yes, sir. Very well. I am doing round 1 का 5. किसी को कुछ अगर लिखना हो तो लिख सकता है. आई थिंक हो चुका होगा. ओके. अब राउंड 1 का 5 जो है शायद आपने वर्कशीट में भी देखा होगा. मैंने राउंड 1 का 5 जो है उसको वर्कशीट में भी इंक्लूड किया था. तो आई माइट एज वेल अटेम्प्ट इट सो दैट वो वर्कशीट का भी वो चीज क्लियर हो जाए. Okay, the electron of a hydrogen atom is considered to be revolving around a proton in a circular orbit of radius. Now there's 5. So radius r. Now this is h cut. People, this is not h. This is h cut by me square. And with a velocity, कितनी speed है उसकी? E square by again h cut. ये h cut जो है ना is h by 2 pi. याद रहे हमको एंड में सब्स्टिट्यूट करना है h by 2 pi. सो करंट पूछा है हमसे. आई थिंक यू वेरी वेल रिमेंबर, अभी थोड़ी टाइम पहले ही हमने देखा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो हाउ मच करंट इज कंस्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रेडियस? द इलेक्ट्रिक करंट due to the motion of electron, I guess you remember, it is EV by 2 pi r. So I am going to put the values of velocity. Velocity कहाँ है भाई? ये रहा E square by h cut, and I am going to put 1 by r. ये नीचे ये 1 by r है ना, तो 1 by r me square over h cut square. So the first answer that we shall obtain will be in terms of h cut itself. I is equal to ये E1, ये 2 3 और ये 4 5, तो me raised to 5 over 2 pi, तो यही है. एंड h कट और h कट का स्क्वायर इज h कट का क्यूब. पर उनको आंसर h कट में नहीं चाहिए, उनको आंसर h में चाहिए. नाउ पुट h कट इज h by 2 pi, so me raised to 5 over 2 pi, एंड यहां h by 2 pi का क्यूब. सो me raised to 5 और ये 2 pi का क्यूब इज 2 to the 4 to the 8, 8 pi क्यूब वो चढ़ गया ऊपर ओवर 2 pi into h क्यूब. सो आई एम रेडी टू कैंसिल. 2 4 8, 1 pi कटा तो ऊपर पाई स्क्वायर बचा, एंड एज अ रिजल्ट आई एम लेफ्ट विथ i इज 4 pi स्क्वायर. 2 4 8 ना, तो 4, 1 पाई कटा, यहां पाई स्क्वायर बचा, पाई स्क्वायर me raised to 5 over h cube. Is this a valid answer, people? Yes, sir. Absolutely valid, no doubt. Okay, right. तो अब चलते हैं ओम्स लॉ के पास. ओम्स लॉ कब से इंतजार कर रहा है हमारा. And Ohm said that the ratio of the potential difference between the two ends of the conductor to the current flowing through the conductor remains constant. So V by I, there is a potential difference to the current, it is constant, and this constant is called resistance, denoted as R. Okay, and as a result you get one of the most widely famous expressions of all time, V is equal to IR. Wow, so lovely. हर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, हर बॉडी की प्रॉपर्टी है. या तो वो बॉडी अलाउ करेगा करंट को फ्लो होने में, और या तो वो रोकेगा, कुछ ना कुछ करेगा. तो दैट प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी बॉडी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. अब जैसे मेटल्स का रेजिस्टेंस कम है, एलॉयज का रेजिस्टेंस कम है, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इंसुलेटर्स के थ्रू करंट ज्यादा पास नहीं हो सकता. हमारा भी रेजिस्टेंस कम है, तभी तो अगर बिजली गिरती है हमारा हाथ जाता है अंदर, प्रूम झटका लगता है, मस्त मजा आ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
to oppose the flow of current through it. Heath Mehta, now you are agreed with the idea of resistance? Yes, sir. हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी, हर बॉडी में रेजिस्टेंस होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, मेटल्स में कम होता है, इंसुलेटर्स में ज्यादा होता है, तो हर बॉडी का ये रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्या डिफाइन किया था? वोल्ट अपॉन करंट, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, और बेटर नोन एज ओम, and symbol is omega. Somebody told me the other day, this is a resistor of 5 omega. भाई ओमेगा नहीं है, वो ओम है. सिंबल ओमेगा जैसा है, बट उसको ओमेगा नहीं बोलते, उसे ओम बोलते हैं. ओके, नाउ रेजिस्टेंस का उल्टा प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस मतलब रोकना, तो कंडक्टेंस मतलब जाने देना, करंट को फ्लो होने देना. एंड इसका ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स और महो. इसका सिंबल भी एक जमाने में उल्टा ओमेगा कर दिया था. फाइनली बहुत टाइम के बाद एक यूनिट मिली विच इज सीमेन, बड़ा एस. ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो रेजिस्टेंस है कोई भी बॉडी की या कोई वायर की एज सच, वो कौन सी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 3 फैक्टर्स पे. इट्स लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज ये वायर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये उसका लेंथ हुआ, एंड थर्डली द मटेरियल फ्रॉम विच इट इज मेड. सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इन दोनों को मद्देनजर रख के हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, R proportional to L by A, and now we introduce the constant of proportionality जो मटीरियल स्पेसिफिक है, रो L by A. Very lovely formula this. R is equal to rho L by A. R is resistance, L is length, A is cross sectional area. Rho is the property of the material which is called resistivity or specific रेजिस्टेंस. इसमें ये स्पेसिफिक है ना, वो ये बताता है कि ये सिर्फ मटेरियल के साथ चेंज होती है या टेम्परेचर के साथ. बाकी तुम लेंथ चेंज करो, एरिया चेंज करो, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, बट रेजिस्टिविटी मटेरियल की तो वही रहेगी. सो इट इज मटेरियल स्पेसिफिक. सो ऐसा यूनिट ऑफ रो इज भाई ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम मीटर, ये मीटर तो सही नहीं है, ये मीटर. अब जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टिविटी. क्या होता है? हाँ, बट थैंक यू सो मच, दिव्या हैज बीन रियली हेल्पफुल. सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, and which Divya says is denoted as sigma. So we shall take that into consideration. So sigma is 1 by rho. And ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, जैसे ये ओम मीटर, तो उल्टा क्या हो गया? ओम मीटर, द फर्स्ट थिंग होल इनवर्स. और भाई ओम का इनवर्स क्या था? महो. भाई दैट इज नॉट साइमन, इट इज सीमेन. वेरी वेल राइमिंग विथ SEMEN, बट इट इज नॉट SEMEN. दिस इज द नेम ऑफ अ वेरी फेमस साइंटिस्ट. आई एम श्योर उनके ऊपर कंपनी का नाम भी है, सीमेंस. सुना है कभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह में? आई थिंक जर्मन थे सीमेंस. आई डोंट रिमेंबर एज सच, never seen the passport. So Siemens meter inverse. So this was the idea of resistance and all. And Ohm's law का एक वेक्टर फॉर्म भी है जो है J bar is sigma E bar. This is the vector form of Ohm's law. हमको डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है,
क्योंकि हमको और बहुत सी चीजें करनी है. So this is the vector form of Ohm's law. Is this okay? Can I take this off? No problem so far. अच्छा, इससे पहले कि मैं Ohm's law से साइन ऑफ कर दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं. यू कैन सी हियर रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए. पर अगर तुम कोई वायर है, उस वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ तो चेंज होगी ही, साथ में उसका एरिया भी चेंज होगा. डोंट यू अग्री? सपोज कोई चीज को पकड़ के हमने खींच दिया, उसकी लेंथ तो बढ़ेगी, साथ में पतला होता जाएगा ना, तो उसका एरिया भी चेंज होगा. तो उस लंबे स्ट्रेच्ड वायर का रेजिस्टेंस अब कैसे फाइंड करें, दैट हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो व्हाट आई विल डू इज, आई एम गोइंग टू, यहां पे दो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, लेंथ भी और एरिया भी. अब दो को चेंज मैं कैसे साथ में देखूं? So what I am going to do is, I am going to multiply and divide it by length, because I know how much I stretch, the volume will remain nearly constant. So multiply equation 1 by, multiply and divide equation 1, sorry, 1 by L. So what do you get? R is equal to rho L by A, multiply by L, divide by L. तो रो एल स्क्वायर बाय ए एल. ए एल इजंट इट वॉल्यूम? तो आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी. ये तो सिर्फ लेंथ के हिसाब से है, मतलब यहां पे रो और वी कांस्टेंट हो जाएंगे तो आर विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एवरीबॉडी इज हैप्पी. बट सपोज तुम इस तरह खींचते हो कि एरिया चेंज होता है, तो अगर मुझे एरिया स्पेसिफिक रखना है, ये तो अकॉर्डिंग टू लेंथ है. इफ आई वांटेड टू डू इट अकॉर्डिंग टू एरिया, व्हाट वुड आई डू? Multiply and divide equation 1 by A. So one more equation I get, R is equal to rho L by A into A upon A. अब नीचे A into A कितना हो जाएगा? A square. एंड ऊपर एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा? वॉल्यूम. सो R is equal to rho. सो इस तरह आपको एरिया के स्पेसिफिक भी इक्वेशन रेजिस्टेंस का मिल जाता है. R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी है, या R इज इक्वल टू रो वी बाई ए स्क्वायर है. अगर वो लेंथ के चेंज की बात करते हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर वो एरिया के चेंज की बात करते हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. यस, बोलो. बिल्कुल. नहीं, तुम ये भूल रहे हो. तुम अगर कोई रॉड को खींचते हो या वायर को खींचते हो, लेंथ और एरिया दोनों चेंज होते हैं, बराबर है? लेंथ और एरिया दोनों चेंज होते हैं. पर अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2%, तो अब कौन सा इक्वेशन लोगे? ये वाला, क्योंकि रो और वी तो कांस्टेंट है, आर विल बी प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. पर अगर सम में ऐसा कहते हैं वी चेंज द एरिया, वी इंक्रीज द एरिया बाय 5%, तो अब कौन सा इक्वेशन लोगे? ये वाला. अगर एरिया के चेंज की बात, चेंज तो दोनों ही हो रहे हैं, एक बात समझो आप, तुम जैसे ही खींचे लेंथ भी चेंज हो रहा है, एरिया भी, पर तुमको डेटा में क्या प्रकार दिया हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज है लेंथ में या कितना परसेंट इंक्रीज है एरिया में, उस हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि लेंथ की बात चली है तो इसको लूंगा, एरिया की बात करी है तो इसको लूंगा. फेयर इनफ? नाउ इज इट अग्रीएबल? ओके. अच्छा, तो इनमें से किसी को यूज कर रहे हैं एक सम करने के लिए, और वो सम है, मैं आपको नंबर बता दूं, राउंड 1 का 15, 15, राउंड 1 का 15. बहुत ही खूबसूरत सम. लेट्स सी व्हाट इट गिव्स अस. अच्छा, कैन आई टेक दिस ऑफ ऑल्सो? आपने इक्वेशंस जॉट डाउन कर लिए? वी आर ऑल गुड? ओके, ओके. I hope you can look at round 1 का 15 and we can find out what it says. Okay. So round 1 का 15 इस तरह कुछ कह रहा है
कि the resistance of a 10 meter long wire, so length is 10 meter and resistance is 10 ohm. Okay, now its length is increased by 25% by stretching wire uniformly. So length increases by 25%. What is the new resistance? Okay, R dash चाहिए. Now you look at the procedure. So let original length be L. हमको पता चल गया कि स्ट्रेचिंग का मामला है. So original resistance एंड स्ट्रेचिंग में किसके साथ कौन सा पैरामीटर की बात करिए? लेंथ की. सो R इज रो L स्क्वायर बाई V. वो दिया हुआ है हमको 10 ओम. ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन नंबर 1. नाउ वायर इज स्ट्रेच्ड. भाई व्हाट इज द न्यू लेंथ? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. न्यू लेंथ कितना है? सो न्यू लेंथ, नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड, is original length plus the increase plus the change जो भी है. So L dash is L plus increase कितना है? 25%. 25% of what? L. बराबर है. So original length L plus कितना? It's increasing by 25%. So 25% of L, you very well know this. 25 by 100 is 1 by 4. So this becomes 5L by 4. And so new resistance सिर्फ L dash ही करना है, बाकी तो सब कुछ सही है. बाकी रो और V तो सेम ही रहेंगे. ये L dash लगाने का है. L dash कितना है? 5L by 4. So 5L by 4 the whole square. But let us rock and roll. 25 by 16 rho L square by V. Hey, ये rho L square by V कौन है? Isn't it R? Yes, sir. R dash by R is 25 by 6. पर मुझे R dash ही चाहिए. मुझे R dash ही चाहिए. Okay, sir. उन्होंने कुछ और बोला नहीं है, सिर्फ R dash बोला है. R कितना है? 10. So this is 250 by 16. Now 16 ones are 16 and 9s are 16 5s are 80 and around 6s are 16 6s are 96. करीबन 15.6 जैसा आंसर होना चाहिए. करीबन चेक कीजिए. है? Yes, sir. वही है. Yes, sir. करीबन 15.6. यस, एब्सोल्युटली लवली. राइट. तो ओम्स लॉ वगैरह तो देख लिया. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं. वेल, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज डिस्कशंस एंड ऑल दोज आइडियाज कि एक कंडक्टर में देर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स. यू नो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट कैरी करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं जो करंट कैरी करते हैं. कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन. एज अ रिजल्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो द नेट करंट इन द कंडक्टर इज गोइंग टू बी 0. अब आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ये सारे आइडियाज हमने बहुत अच्छी तरह देखे थे. द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड will move with an acceleration in the direction opposite to the electric field. And अगर बीच में ये पॉजिटिव आयंस नहीं होते, सब कुछ का कारण ये पॉजिटिव आयंस है. तुम्हारे इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस का कारण भी ये पॉजिटिव आयंस ही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली दौड़ने नहीं देगा, वो बीच में अड़चन खड़ी करेगा ही. एंड एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट में, तो ये दौड़ते दौड़ते एक्सेलरेशन हो रहा है पर धाड़ करके इसको टकरा जाएगा. एंड टकरा जाएगा तो जितनी वेलोसिटी गेन करी थी ना वो सब खत्म हो जाएगी. फिर से रैंडमली खड़ा होगा, शुरू करेगा, आगे बढ़ेगा, एक्सेलरेट करेगा, धाड़ टकरा जाएगा. सो द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हियर टू हियर बट इट डज नॉट एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस एक्सेलरेटेड मोशन. हम कहते हैं द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ सर्टेन, यू नो, ऑन एन एवरेज. ये एक इलेक्ट्रॉन का नहीं, मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का पकड़ रहा हूं.
the electron moves with a certain average fixed velocity which is called drift velocity. So the electron experiences collisions, and thus on average we say electron moves with a certain fixed velocity called drift velocity. I am not going to derive any such thing. जो इक्वेशंस हमने यूज किए थे वही यूज कर रहा हूं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is acceleration into tau. Tau is called relaxation time, the time between two successive collisions. So acceleration कितना है? e by m. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बहुत सुंदर इक्वेशन आ गया, e by m into tau. एक और बहुत ही सुंदर इक्वेशन है जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलेट करता है, I like नेवाडा, जिसकी वजह से हमको मिलता है I by A which is J is NEVD. हमारे लिए N कोई नया खिलाड़ी नहीं है. N is called number density. क्या? Very well, very nice. Number density means the number of charge carriers, या तो number of electrons you can say, per unit volume. न्यूमेरिकल्स में अक्सर n नहीं दिया होता, अगर नहीं दिया होता तो हमको फाइंड करना होता है. सो n is equal to, as तीर्थ rightly said, dNA by m. Here d is density, जगह की तंगी के कारण इधर लिख रहा हूं. d is density, Na is Avogadro number, and m is atomic mass. अगर ग्राम में हो तो केजी में कन्वर्ट करें, डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो केजी पर मीटर क्यूब कन्वर्ट करें, एंड दिस इज हाउ द कुकी विल क्रम्बल. ओके, आगे चलते हैं. एंड जैसे ये J इज इक्वल टू NEVD है, मैं उसको J इज इक्वल टू सिग्मा ई के साथ कंपेयर करने वाला हूं, और करके जो मुझे मिलेगा वो आपके सामने रखने वाला हूं. ऑल्सो जी, कोई है ही नहीं, रिलैक्सेशन टाइम की कोई इक्वेशन है ही नहीं. इट्स जस्ट द एवरेज ऑफ द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, और कुछ नहीं. सो J इज इक्वल टू NEVD, J इज इक्वल टू सिग्मा ई. ये दोनों को इक्वेट किया मैंने, VD की जगह E by m into tau, एंड E को कट करते हुए I get therefore sigma is NE square tau by m, and I'm sure you already know sigma is 1 by rho, so rho is m upon NE square tau. A layman would feel that this is a relation between rho and tau, but no, this equation tells us that with increase in temperature collisions become faster, tau decreases, so rho will increase. So with increase in temperature there is increase in resistivity and resistance. And we have an equation also regarding the temperature and changes and resistivity and resistance. बहुत ही बढ़िया equation था. I think I'll give it to you right here right now. Rho theta is rho 0 bracket 1 plus alpha theta minus theta 0. Do you remember such an equation? Yes, sir. From 11 center. Oh yeah. Resistivity rho theta at temperature theta is, well, you remember it from 11th chapter, you don't remember it from this chapter, alpha theta minus theta 0. Here rho 0 is the resistivity at reference temperature theta 0, and alpha is a constant which is called temperature coefficient of resistance. Rho 0 is the resistivity at reference temperature theta 0,
and alpha is called temperature coefficient of resistance, जिसका ऐसा यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। हम इसी तरह का इक्वेशन रेजिस्टेंस के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम रेजिस्टेंस आर थीटा at temperature theta. Yes, very well. R theta is R0 bracket 1 plus alpha theta minus theta 0. Is this agreeable? टेम्परेचर के साथ रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट बात हमने ऑलरेडी कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन रेजिस्टर्स नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट द कलर कोड। आई होप यू रिमेंबर द कलर कोड very well, but as a matter of fact I'm going to just jot it down so that we can look at it once more. B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. Yeah, so you're not supposed to do anything about it. You're not supposed to do anything with B.B. Roy or something, but it's a mnemonic. Yeah, B.B. Roy. Oh yeah. Oh shit. Is he? I don't mind, do I? So this is color. Then the value for the first and the second bands. And this is the 10 raised to x band. This is the third band. And the last is the tolerance band, which is the fourth band. And B.B. Roy, Great Britain, very good wife. So as I said, the world starts with black, everything ends with white. So this is black, this is brown, this is red, this is orange, yellow, green, blue, violet, gray, white. Starts with black, ends with white, starts with 0, ends with 9. Okay, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Starts with 0, ends with 9. And यहाँ पे अगर हो तो यही वैल्यू का 10 raised to 10 raised to 0, 10 raised to 1 and so on 10 raised to 9. अच्छा, थर्ड बैंड में दो और कलर पॉसिबल है, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। अगर गोल्ड है तो इट इज 10 raised to -1 एंड अगर सिल्वर है तो 10 raised to -2. एंड द फोर्थ बैंड इफ एनी इज द टॉलरेंस बैंड, उसमें गोल्ड या सिल्वर या नो कलर या तो चौथा बैंड ही ना हो, वो हो सकता है। अगर गोल्ड है तो इट्स द टॉलरेंस इज ±5%, सिल्वर है तो ±10% एंड नो फोर्थ बैंड हो तो ±20%. Okay, so let me take an example to clear it off. I got a resistor. We've already done this so many times before. Red, orange, blue, gold. So how much is the resistance? भाई पहला बैंड कौन सा है? रेड. दूसरा कौन सा है? ऑरेंज. रेड कितना है? 2. ऑरेंज कितना है? 3. तो पहले के दो नंबर तो सीधे उतार देने के, एंड तीसरा ब्लू 10 raised to 6 and चौथा is gold, so ±5% ohm. Is this absolutely clear? Yes, sir. एक नंबर है मेरे पास राउंड 1 का 30 जो इसी तरह कलर कोड को बताता है हमको। ब्राउन ब्लैक कलर्स लिख देता हूं। Question here, given resistor has the following color scheme: brown, black, green, silver. Find the resistance, its value in ohms.
सो सबसे पहला भाई ब्राउन कितना 1, ब्लैक कितना 0 इंटू ग्रीन कितना है 5 5 ग्रीन इज 5 एंड सिल्वर प्लस माइनस 10%. Yes. 10%. Now you can see whether such an option is there. 10 into 10 raised to 5 नहीं, उन्होंने 1.0, तो ये 0 यहां ले लेता हूं, तो 1.0 into 10 raised to 6 plus minus 10% ohm. Is this a perfectly logical answer? Yes, it is. बराबर है. So is the color code for carbon resistors agreeable? Yes, sir. No problem so far. Okay. Now let's go to resistor connections. Let's go to resistor connections. Resistor के अलग अलग टाइप के connections आपको बताना चाह रहा हूं. Actually series and parallel की बात चली है. You know all that very well. Now resistors can be connected in many patterns. The first and the foremost, the most basic is in series and parallel. अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो याद रखिएगा सेम अमाउंट ऑफ करंट शुड फ्लो थ्रू ऑल रेजिस्टर्स. सो दिस इज रेजिस्टर कनेक्शंस. द फर्स्ट इज सीरीज. सो these three can be said to be in series because इस बैटरी में से करंट निकला, इसके पॉजिटिव में से, कन्वेंशनल करंट कहते हैं इसको, ये गया, इसके थ्रू भी आई, इसके थ्रू भी आई, इसके थ्रू भी आई, और ये आई फिर से इसके नेगेटिव में आ गया. सो कैन यू सी सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स. सो इन सीरीज सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज. हाँ, पीडी जरूर डिवाइड होगा. इसके अक्रॉस V1 होगा विच विल बी IR1, इसके अक्रॉस V2 होगा विच विल बी IR2, इसके अक्रॉस V3 होगा विच विल बी IR3. सो V will be equal to total V is V1 plus V2 plus V3, and finally the equivalent series resistance, how much is that? RS is R1 plus R2 plus R3. And if there are n resistors, what will be the net equivalent series resistance for n resistors in series? Equivalent resistance RS is R1 plus R2. And याद रखिए क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, तो equivalent series resistance will be bigger than the biggest resistance. ऑलराइट, सपोज ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो नेट आंसर कितना होगा? 15 प्लस 10 25 प्लस 10 30. Isn't 30 ohm bigger than 15, bigger than the biggest ohm? Okay, so note the equivalent series resistance, this is also a way to find out, is bigger than the biggest resistance. सो इसका मतलब है अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो यू शुड कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन सीरीज. मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए यू शुड कनेक्ट देम इन सीरीज, एंड द कन्वर्स इज ट्रू फॉर पैरेलल. शैल वी गो ऑन फॉर पैरेलल? Yes, sir. ओके जी, कम ऑन सेस. अगर कोई क्या है? Resistance की वैल्यू नेगेटिव हो तो रेजिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है बेटा? हाँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, विच वुड इंडिकेट दैट टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है, पर रेजिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है? या तो रेजिस्टेंस कम हो सकता है या रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट. या तो करंट को कम अपोज करेगा या ज्यादा अपोज करेगा. अब जैसे कंडक्टर्स की वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस की,
वो बहुत कम होती है। इंसुलेटर्स की वैल्यू रेजिस्टेंस की बहुत ज्यादा होती है, तो वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। डू यू अंडरस्टैंड? यप। क्या करंट? आपने बताया था ना अभी, आर इक्विवेलेंट बड़ा होता है सीरीज में हाँ और कम होता है पैरेलल, हाँ, तो ऐसा करंट में भी कुछ होता है? आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है सब में, पैरेलल में करंट डिवाइड करता है। तो सर पैरेलल में भी, यानी अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो बेस सीरीज में या पैरेलल में रखेंगे तो किस में ज्यादा है? अच्छा, ऑफ कोर्स, अगर तू पैरेलल में रखेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा ना। तो मतलब कि हमें ज्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। मैं शायद बताना भूल गया, पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सीरीज का मतलब है कोई भी दो रेजिस्टर का एक एक हाथ कनेक्टेड हो, वो भी प्योर। यू नो, ये एक हाथ है, ये इसका एक हाथ है, ये दोनों कनेक्टेड हो और वो भी प्योर, बीच में से कुछ करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सीरीज। बराबर, दोनों का एक एक हाथ। अगर दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं तो दिस इज पैरेलल, और पैरेलल में कहीं से कुछ बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये चाहिए। जो भी कंडीशंस है वो सीरीज के लिए है, पैरेलल में सिर्फ एक ही, दोनों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हो तो वो पैरेलल हो जाता है। वाह, तो R1 R2 के साथ है, R2 R3 के साथ है, तो इन शॉर्ट R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में, एंड यहां पे करंट डिवाइड करेगा, यहां से I निकला, यहां तक आया, और यहां पे तीन टुकड़े होंगे, ये I1, ये I2, ये I3। सो इन पैरेलल द करंट डिवाइड्स, इट इज डिफरेंट थ्रू ईच रेजिस्टर, बट द पोटेंशियल डिफरेंस across all resistors is same. So in parallel, the potential difference across all resistors is same, current divides. एंड जैसे आपने सीरीज वाले में देखा कि V is V1 plus V2 plus V3, यहां पे we'll get I is I1 plus I2 plus I3. Fair enough? So I is I1 plus I2 plus I3, PD will be same, and as a result equivalent resistance 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by R2 plus 1 by R2. Absolutely. And for N resistors also it is the same. बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, लोग अक्सर ये 1 by Rp जो है ना वो भूल जाते हैं। यहां जो आंसर आया ना वही आंसर, अरे बाबा इसको पलटी मरवाने का है, तो ये भूलना नहीं। For N resistors in parallel, 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R plus 1 by Rn. Yep. एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, जस्ट अ मिनट, रेसिप्रोकल होने से द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। सो नोट में, द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो यू शुड कनेक्ट रेजिस्टर्स इन पैरेलल। Yeah, you were saying something? Divya? Sir, Yeah. yes sir, doubt sir. हाँ बोल। सर आपने जो बोला ना कि रेसिप्रोकल होता है, तो वो मेरे को समझ में नहीं आई, कैसे होगा? You want me to derive this from here to here? नो सर, डेरिवेशन में नहीं जा रहा है सर, मैं वो बोलना चाहता हूँ, आपने वो बोला ना कि स्मॉलेस्ट होता है तो कैसे होता है? अच्छा, सपोज ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो अब तीनों को पैरेलल में लगाया तो 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4।
अब 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 12 है ना? तो ऊपर आ जाएगा 6 प्लस यहां आ जाएगा 4 प्लस यहां आ जाएगा 3. 6 and 4 it's 10, 10 and 3 is 13, 13 by 12, and as a result RP will be 12 by 13. Isn't this less than 1? करीबन 1 ohm मैं बोलता हूं इसको. Can you see equivalent parallel resistance is smaller than 2 or 3 or 4? Isn't it smaller than the smallest resistance? Do you understand this? So जब भी अभी 2, 3 और 4 है, इसका मतलब आपको अंदाजा है पैरेलल में है तो 2 से भी आंसर कम होने वाला है. तो अगर आपका आंसर 2 से ज्यादा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है आपने. ओके, आपने कुछ गड़बड़ किया है जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा. अच्छा, मैं एक और छोटा सा शॉर्टकट बता दूं जो मैं अक्सर यूज करता हूं. सिर्फ 2 रेजिस्टर हो ना तो 1 by RP is 1 by R1 plus 1 by R2, which is नीचे मल्टीप्लाई हो गया R1 R2 ऊपर R1 plus R2. So my equivalent parallel resistance for 2 resistors only is R1 R2 over R1 plus R2. मैं इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूं. प्लीज हैव अ लुक. ओके, राउंड 1 का 33 इज ऑन द डेक नाउ. एंड अगर आप देख रहे हैं राउंड 1 का 33, दे से रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm each are connected as shown. Current is 0.5 ampere. So let me draw this. ये 3 रेजिस्टेंस और ये इतने सारे रेजिस्टेंस देख के कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बट यू नीड टू एनालाइज देम केयरफुली. 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. This is 6 ohm, 6 ohm, भर के 6 ohm है. And this is Q. You need to find the potential difference between P and Q. Okay, so VP minus VQ find करना है आपको. वो हो जाएगा. सबसे पहले you will need to, break down this circuit, simplify this. Do you see 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm are in parallel? Okay, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm in parallel, we'll call it R dash. So 1 by R dash, be careful, is 1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6. नीचे 6 का एलसीएम 1 plus 1 plus 1 is 3. So इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर R R R ऐसे 3 है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R by 3. जैसे 6 6 6 3 है तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 by 3 हो गया 2. तो मस्त ऐसा सेटिंग मार देते अपने. बाकी ये तो है ही है, नो डाउट. अच्छा, यहां 6 और 6 सीरीज में कितना हो गया? 12. एंड ये 12 and 6 आर इन पैरेलल. 12 ohm and 6 ohm in parallel. So R double dash, मैं वहीं चला जाता हूं, जगह चेंज. R double dash is 12 into 6. याद है मैंने दिखाया था R1 R2 over R1 plus R2. So this is 12 into 6 over 18. 6 3s are 18 and 3 4s are 12. So R double dash is 4 ohm. So let me redraw this circuit again. Let me draw it again. Equivalent. And let's see what happens. This is R dash and this is R double dash. This is point P. Do you agree ये दोनों सीरीज में है? 2 ohm और 4 ohm. R dash and R double dash in series. So what is your R equivalent? 2 plus 4, that is 6 ohm. And अब रेजिस्टेंस मिल गया P और Q के बीच में. So potential difference, करंट तो पता ही है 0.5 between P and Q. So VP minus VQ, because P is at a higher potential, is I into R equivalent, that's 0.5 into 6, that is 3 volt. Is that agreeable? Yes. Yes, sir. 3 volt is the answer. Okay, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं करने जा रहा हूं SP7. SP7 can be a bit dangerous. सर्किट थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है अगर आप थोड़ा ध्यान ना दें तो
तो आई एम टेकिंग दिस ऑफ. So the most important is the circuit and the way you see the circuit. अगर आपको सर्किट पूरा आप देख रहे हो तो कंफ्यूज ही रहोगे, बट इंडिविजुअल पार्ट्स देखोगे, धीरे धीरे देखोगे, कंपार्टमेंटलाइज करोगे तो आसान हो जाएगा. So what is SP7? Let's find out. SP7 भतेरे रेजिस्टर्स है. इन इंग्लिश में यू कॉल इट भतेरे रेजिस्टर्स. सो ये ए है. दिस इज 4/5 ओम. डोंट गेट हैसल्ड अबाउट ऑल दीज रेजिस्टर्स. डरने का नहीं. ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट. ये डी है. ये 4/5 ओम शायद बुक में लिखा नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है, आप लिख दीजिएगा. ये ई है. ये सी है. ये 6 ओम. ये 18 ओम एंड दिस इज 3 ओम. एंड यहां से एक जंपर मारा है. जंपर मतलब देयर इज नो कनेक्शन. दिस इज 3 ओम एंड इसके पैरेलल में मैं भूल गया. ओके, आ गया, सारे डायग्राम आ गए. 3 ओम, 9 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 18 ओम. ये बी 4/5, 4/5, 1/5. ओके, वी आर ऑल गुड. ओके, अब डेटा देखते हैं. फिगर अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी और जिसका ईएमएफ है 18 वोल्ट. द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज करंट फाइंड करना है. अब करंट फाइंड करने के लिए तुमको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा बिटवीन ए एंड बी. सो आर इक्विवेलेंट, दैट इज द प्राइम क्वेश्चन, इज हाउ मच बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. नाउ लेट मी रिड्यूस दिस सर्किट फॉर यू. हाउ डू आई डू दैट? अब सपोज बैटरी तुमने ए और बी के बीच में लगाई है तो ए में से करंट निकलेगा. ए में से करंट निकलेगा, टॉइंग 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 हर जगह जाएगा. पर ये डी में करंट जाएगा नहीं, क्योंकि अगर जाएगा तो वापस आएगा कैसे? सो डू यू अग्री? करंट डी में से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि डी यहीं पे एंड हो जाता है, वापस घूम के सर्किट में नहीं आता. तो जितना करंट ए में से आया बी में से उतना निकलना चाहिए. तो अगर डी में आएगा तो वापस कहां से आएगा? सिमिलरली यहां सी में भी जाएगा नहीं, क्योंकि सी में से जाएगा तो वापस कहां से आएगा? सो फर्स्ट शॉट में ही आपका 1/5 ओम एंड 4/5 ओम दे वैनिश. पहले ही शॉट में क्या हो गए? गायब हो गए. ओके जी. ऐसा भी हो सकता है ना, यानी करंट सी टू डी हो. बेटा कहीं सी और डी में कोई भी कनेक्शन है? बैटरी सी और डी के बीच में लगाई है या ए और बी के बीच में? बैटरी ए और बी के बीच में लगाई है. सी और डी तो खुले पड़े हैं. सॉरी, मैंने क्वेश्चन. हाँ, ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है, सी और डी खुले पड़े हैं, तो सी और डी के रेजिस्टेंसेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. सो सी और डी को मैं सेकंड सर्किट में बनाऊंगा ही नहीं. तो क्या बचा? अब इतना तो बनाना पड़ता है, वैसे बनाए बगैर भी चल जाता है. जंपर में से वो करंट पास नहीं होगा. जंपर मतलब ये इन दोनों का, अगर मैं जंपर नहीं बनाता, ऐसा रखता, इसका मतलब है दोनों यहां पे टच हो रहे हैं, दोनों में कांटेक्ट है. पर जंपर का मतलब है कि इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, बाईपास हो रहा है. ये 9, ये 3, ये 6, ये 3, ये 18, ये 4/5. ओके, do you notice first thing 9 and 3 are in parallel? Can you see that? 3 ohm and 9 ohm in parallel. तो उसका कितना हो जाएगा R dash? 3 into 9 over 3 plus 9. That is 3 into 9 divided by 12. 3 4s are 12. तो 9/4 ohm. पहला आइडिया ये 9/4 है. तो फिर से सर्किट बना रहा हूं. ये
अगर मैं कर रहा होता ना तो मेरे को इतने सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं धार 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 करके निकल लेता, पर क्योंकि हम ये समझाने के लिए बना रहे हैं तो ये करना जरूरी होता है। सो ये 6, ये 18, क्योंकि आपका पहली बार है ना। अच्छा, नाउ कैन समवन टेल मी आगे क्या होगा रामा रे? अब क्या होगा? कुछ दिखाई दे रहा है इसमें ऐसा जो कभी बात चली थी अपनी? अच्छा मैं दिखाता हूं। ओके, 6 का ये एंड, ये हाथ, कैन यू सी 3 ओम के साथ है? कैन यू सी दिस? प्योर है सर, यस सर। भाई प्योर इम्प्योर की, ये प्योर, इसको यहां से ये वायर निकल रहा है तो प्योर हुआ। ये वायर यहां से निकल रहा है तो क्या ये हाथ पकड़ना प्योर गिना जाएगा या नहीं? नहीं। नहीं किया जाएगा सर। तो फिलहाल सिर्फ देखो ना, मैं जो दिखा रहा हूं, एक हाथ इसके साथ है, 6 ओम का दूसरा एक वही हाथ क्या इसके साथ भी है? इंटरनेशनल हाथ। एंड 6 ओम का एक हाथ इसके साथ भी है, 18 ओम के साथ। आर यू सीइंग इट? यस सर। 6 ओम ने 3 ओम को भी पकड़ा है, यही हाथ से 9/4 को भी पकड़ा है, यही हाथ से 18 को भी पकड़ा है, और मैं ये भी प्रूव कर दूंगा उसका ये हाथ भी इन चारों के साथ है। अभी दिव्य ने गाना गाया, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और सारी जन्नतें, आहा, क्या बात है। आर यू गेटिंग द हैंग ऑफ दिस सर्किट? ये सर्किट, आर यू गेटिंग द हैंग? क्या तुम ये कह सकते हो कि चारों रेजिस्टर ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े हुए हैं? ये ब्लू कलर, ब्लैक कलर का देखो, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ये ब्लू कलर का इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो 18, 9/4, 3 और 6, क्या ये सारे पैरेलल में माने जाएंगे? हाँ या ना? सो जैसा मैं कह रहा था, क्या आपने देखा 6 ओम का ये एक हाथ इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, और 6 ओम का दूसरा हाथ इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो 18, 9/4, 3, 6 सारे पैरेलल में हुए या नहीं हुए ना? वाह 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 वाह, क्या बात है। बस देखने का नजरिया चाहिए, देखने की कोशिश करोगे तो सब कुछ दिखाई देगा। तो मेरा फाइनल डायग्राम ये तुम्हारा ए है, और ये कितना है 4/5, और अब ये चारों चार 18, 9/4, ये 3 और ये 6, all are in parallel. Wow, isn't this looking agreeable? तो सबसे पहले इन तीनों चारों का पैरेललिटी फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होता है, और फिर उसको 4/5 ओम सीरीज में होगा। सो 18 ओम, 9/4, 3 and 6 are in parallel. So 1/r dash 1/18 plus 1/9/4, which is 4/9, plus 1/3 plus 1/6. I think 18, 9, 3 और 6 सबका LCM कितना? 18। ये 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, 4 2s are 8 and 6 are, तो 6 and this is 3. 6 and 3 9, 9 and 1 is 10, 10 and 8 is 18, and 18/18 is how much? Oh my god. And 1 ohm and 4/5 are in series. 1 ohm and 4/5 ohm in series. Oh yes. 1 ohm and 4/5 in series, and because this is the last, so I'll call it R equivalent. 1 plus 4/5. 5 ones are 5 and 4 is 9. So 9/5 ohm is R equivalent. And now current I
is epsilon by R equivalent. Epsilon कितना था? I think 18 volt ना? 18 वोल्ट, हाँ सर। So 18 by 9 is 2 and 2 into 5 is 10 ampere. Is anyone checking 10 ampere? Is that an agreeable option? 18 by 9 by 5 is 10 ampere, and that's the answer. And I think the last sum for the day, round 1 ka 36, that will be the last. Round 1 का 36, वेरी लवली सम. फिर से इसी में देखने का नजरिया एंड ऑल. अगर आपका नजरिया गलत है तो सही कैसे देखोगे? पता नहीं इसका मतलब क्या था. आई होप इधर वर्कआउट हो जाए वो चीज. ओके, सो आई एम ऑन टू राउंड 1 का 36. ये भी एक डेंजरस हो सकता है, बस देखो सही से. खतरनाक है भतेरे रेजिस्टर्स. पता नहीं कहां कहां से क्या क्या निकल रहा है. ये अटका. Okay, this is 16. They have called this point as B. Okay, this is 12 ohm. They have called this point as A. This is 10 ohm. They've called this point as C. This is 10 ohm. This is 10 ohm. This is D. And this is 2.5 ohm. Okay, everything is good. Now, what is the equivalent resistance across A and B in the circuit given below? So, my two important points. सबसे पहले important यही है. बहुत सारे पॉइंट दिए होंगे, किसके अक्रॉस फाइंड करना है वो जरूरी है. ये ए ब्लैक में लिखूंगा और ये बी. ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको छूने का नहीं, बाकी जिसको छूना है छू. अब पहले शॉट में इन दोनों को देख पा रहे हो आप? ये दोनों किस में है? पैरेलल. सो 10 ओम एंड 2.5 ओम, वो ए और बी किसी के साथ इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो मैं इनको पैरेलल में ले सकता हूं. So R dash is 10 into 2.5 over 10 plus 2.5. That's 25 by 12.5. Isn't it 2? Yes, sir. And अब मैं नया सर्किट बनाऊंगा जो अब ये 10 ओम और 2.5 का पैरेललिटी 2 हो गया. And now in a very beautiful event, मैं इस A को यहां से नीचे उतार के यहां ले आता हूं ताकि वो नीचे तो आए, मेन उसमें तो आए, और B को उठा करके ऊपर ले लेता हूं. यहां लू या यहां लू, बात तो एक ही है. अच्छा जी, ये 10 और 12 किस में लग रहे हैं? सीरीज. तो डायग्राम से ही हो जाएगा. 10 और 12 कितने? 10 और 2 कितने हो गए? 10 और 12 नहीं, 10 और 2. 10 और 2 12 और 12 12 करेगा। क्या बात करते हैं सच्ची. एंड एज द मैन राइटली सेज 12 12 पैरेलल को कितना हो गया? 6 6. एंड ए को ठा करके मैं यहां ले आया. भाई 10 and 6 in series is how much? 16. मैं इसको उड़ा देता हूं. आपने देखा ए और बी कहां थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते. ये ए, ये बी. भाई ये 16 और 16 किस में लग रहे हैं? पैरेलल. And as a result, R equivalent is 16 by 2, that is
8 ओम। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, पीछे आंसर गलत है, आप उसको चेंज कर दीजिएगा। पीछे आंसर सी है जबकि आंसर है ए 8 ओम। तो 8 ओम इज योर एक्चुअल आंसर। एंड दिस वाज लवली टेकिंग यू विथ मी एंड काफी मजा आया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब और ढेर सारी बातें करेंगे और नए नए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका होमवर्क कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।